Assalamu alaikum, welcome to Sama Lounge. I'm your host Bazal Mushtaq. Today we have two very dynamic guests. दोनों की fields एक दूसरे से बहुत अलग हैं. One is an educationist, a technocrat, a former provincial caretaker Minister of Transports, Mines and Minerals, Livestock and Dairy Development, Ibrahim Hassan Murad. And the other one is Pakistan's top sports anchor, a former actress, Savera Pasha. Please welcome both of them. How are you guys? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। Very well, thank you जी। तो इब्राहिम, let's start with you. I've heard के आपकी oath taking से आपको घंटा पहले पता चला था कि आप मिनिस्टर बन रहे हैं. Is that true? जी बिल्कुल, वो ये कि एक सरप्राइज ही था। I was having dinner somewhere और 9 बजे मुझे फ़ोन आया कि 10 बजे आपका गवर्नर हाउस में ओथ है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक थोड़ा सा ये है कि हमें एक बैक ऑफ द माइंड था कि शायद जो है एक अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि एक हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ डिस्कस किया था लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी, तो इट वाज अ शॉक। तो बट लाइक आप क्या फील कर रहे थे कि एक घंटे में आपने पहुंचना है, तैयार होना है, ये है वो है जी। व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर हेड? ये कि कुछ दोस्तों को और बुजुर्गों को फ़ोन किया, उनसे कहा आप पहुँचे उधर, तो मैं भी उधर पहुँच रहा हूँ। और ये कि हम गए उधर, एक सेरेमनी हुई और उसके बाद उस वक्त पोर्टफोलियो का भी नहीं आइडिया था, तो अगले दिन फिर उसका ही पता लगा कि क्या पोर्टफोलियो है। तो ये कि ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि एक यंग एज में आई वाज ओनली 31 और ये कि बीइंग अ मिनिस्टर इन पंजाब, obviously it was a privilege but it was also a responsibility. ये कि I am happy कि एक अच्छी effort put in की और जितना deliver कर सकते थे उतना किया। सही। ऐसे सरप्राइजेस अल्लाह जिंदगी में सबको Absolutely, I know. सवेरा, आपकी तो पूरी फैमिली शोबिस से है. What do you feel about your legacy? Sometimes I say that we are the Kapoors of Pakistan. Okay. इस वजह से because like everyone, मतलब अब्बू, अम्मी, निदा, then the other sister Sina, मैं, then I got married into a family जो कि मेरे father-in-law जो हैं वो writer हैं, उन्होंने फिल्में लिखी हुई हैं, plays भी लिखे हुए हैं, मेरा husband producer है। सही। Then my sister got married in a family जो वो खुद वो थी कि फरीद नवाज बलोच, एक बहुत बड़ा नाम, यासिर नवाज itself, दानिश, people know him. तो yes, मगर ये कि ये मजे की लेगेसी है, obviously प्रेशर बहुत होता है। What are your kids into? Right now they are not much into showbiz at all. Okay. हाँ, ये नई जनरेशन जो है वो जरूर ये कहती है मैं यूट्यूबर बनूंगा या ये वाली चीज है, but they're more into sports and I'm really happy about it. वरना तो ये तो gadget generation है। Yeah, today I just found out that Nida is your sister. And I was actually surprised. I didn't know that. Seriously? Yeah. अच्छा, that was my ignorance. But लेकिन आप भी ड्रामे करती थी, आपको भी like how आपका ये shift कैसे हुआ to sports? Almost 2006 में I completed my MBA और उसके बाद जो है there was this दो पैरल एक जंक्शन पे मैं एक जगह खड़ी हुई थी कि दो फोर्क था कि whether मैं बैंक इंडस्ट्री ज्वाइन करूं और बैंक में कहीं बिकॉज अपनी पढ़ाई को फॉरवर्ड लेकर चलूं या फिर अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ को आगे लेकर चलूं. So that was the time when I was when a channel offered me a soap, and it was a very interesting and good project. It was touring around Pakistan in a car, in a bus. So yes, that was my first experience. So I said yes to that. 2011 तक मैंने ड्रामास किए, but eventually जब मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई, so then it was a very big shift because वहाँ बिचारी बन के रोती रहूं या यहाँ जो है वो क्रिकेटर्स को बातें सुनाती रहूं, तो मैंने कहा नहीं, ये वाला पार्ट ज्यादा सही है. सही. So you were always into sports, बचपन से? Always. सही. And Ibrahim, like you said that इतनी young age में you achieved so much. ऐसा, and you have honestly. So ऐसा क्या है कि what keeps you grounded? Because you seem very humble. So what keeps you grounded? I think एक तो ये कि you should know कि you've never achieved anything. ठीक है, मतलब that's wrong to start with. तो अगर आपको पता हो कि आपकी जर्नी जो है it has to continue. और ये you have greater things to do, greater goals to achieve. तो फिर ये कि आप मेहनत करते रहते हैं, आपको ये एक कोई satisfaction नहीं होती. ये मेरी शायद, मुझे वैसे भी एक मसला है कि मुझे कुछ भी मिल जाए जिंदगी में तो मुझे कभी इत्मीनान नहीं होता. मैं हमेशा सोचता हूँ कि अच्छा इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है या आगे. तो ये अगर आप इसमें आपके पास कंसिस्टेंसी हो, आप मेहनत करें, आपके गोल्स बड़े हो, तो ये कि फिर आप लगे रहते हैं. आपको एक तो मेरी अपनी जो है वो पर्सनैलिटी इस तरह की है. जैसे मेरा, तो आप घर की सबसे छोटी हैं, तो क्या आप कहेंगे कि आप घर की सबसे लाडली भी हैं?
मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। मुझसे 11 साल छोटा एक भाई है, यानी द आफ्टर थॉट ऑफ माय पेरेंट्स। सो यस, मगर 11 साल तक मैं सबसे छोटी जरूर रही हूँ। तो लाडली मैं हूँ। लाडली मैं सिर्फ अपने घर की नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली की लाडली। मतलब मैं अपनी तारीफ करते हुए ऐसा अच्छा नहीं लगता, बट मैं जो है अपने खानदान की रौनक हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली में भी। हाँ, मतलब अगर मैं किसी जगह हूँ तो यस, फिर जो है वहाँ शोर होगा, वहाँ हल्ला गुल्ला होगा। सो आई एम द पार्टी फॉर द फैमिली। हम लोग जिस तरह 4 बहन भाई हैं, और इस तरह होता है कि जो पहला बच्चा होता है उस पे सारे पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे, चौथे तक ना फिर बिल्कुल ही उसके लिए इजी होता है सब कुछ। सो वाज दैट लाइक विद यू एज वेल? It wasn't. मैं इसको दूसरी तरीके से देखती हूँ। जो पहला बच्चा होता है उसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा कपड़े भी लिए जाते हैं, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। पहली दफा माँ बाप बने हुए होते हैं तो ऑब्वियसली दे वांट टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड पे थोड़ा सा वो जज्बा कम होता है और कहते हैं यार कोई बात नहीं, पहले वाले के कपड़े बचे हुए वो पहना देंगे, क्या हो गया। तीसरे वाले तक तो होता है जो बूंदिया बांट दो, तीसरा बच्चा पैदा होगा। सो मैं इस तरह देखती हूँ उसको। अच्छा इब्राहिम, आप भी एक फॉर्चुनेट और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप कैसा आसपास का माहौल था? जी, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा सब सिविल इंजीनियर थे। मेरे पे आके ब्रेक लग गई। मैंने जो है वो एंड यू द ओनली सन? जी जी, आई एम द ओनली सन। तो आपको कोई बहुत टफ ट्रेनिंग मिली होगी बचपन में फिर तो? शुरू में तो ऑब्वियसली थी, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन ये कि मुझे डांटा नहीं लेकिन रगड़ा बहुत लगा। और ये कि जिस तरह जब मैं स्कूल में था तो समर्स में मुझे वो जॉब कराते थे 9 to 6, 2 महीने, ग्रेड 9 में, 10 में, 11 में। तो उससे एक ऑब्वियसली ऐसी एक ट्रेनिंग हुई, एक ऐसा ब्रॉटअप हुआ जिससे जना पता लगा कि कोई भी चीज़ है, और ये बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि यू विल हैव टू अर्न इट। आपको जिंदगी में कोई चीज़ प्लेट में नहीं मिलती, नो मैटर हाउ फॉर्चुनेट ऑफ अ बैकग्राउंड यू हैव। आपने अपना नाम भी मनवाना है, आपने अपने आप को भी मनवाना है, और वो सिर्फ मेहनत से और लगन से आदमी को मिलेगा। जिस तरह व्हेन यू डू अ शो, आजकल वैसे ट्रोलिंग का जमाना है, तो निदा के भी अक्सर बहुत ट्रोल्स मीम्स बन रहे होते हैं एक्चुअली। मेरा खुद का भी रिसेंटली एक बना है, होस्ट का मोए मोए हो गया, स्टफ लाइक दैट, इवन दो इट वाज, सो आई एंजॉय इट। मैं हंसता हूं उन चीजों पे जो भी है। सो हाउ डू यू गाइस टेक इट? डू यू समटाइम्स डज इट पुट यू डाउन, या डू यू गाइस आल्सो लाफ अबाउट इट? अच्छा, इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली। बड़ा मुझे होता था यार ये इसने क्यों लिख दिया, वो क्यों हो गया, ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग हो गया। बट इन माय फील्ड, बिकॉज स्पोर्ट्स में खवातीन का आना, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खवातीन का आना, ये जरा एक मुश्किल स्टेप था, और उसको जाहिर सी बात है मुझे पता था ये चैलेंजेस आएंगे सामने। तो अगर एक मेरा मेल काउंटर पार्ट जो है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो वो उसकी गलती होती थी, बट अगर मैंने कोई गलती कर दी तो वो मुझे पता नहीं है। अरे ये लड़की है, इसको क्या पता कि इसने तो इसीलिए गलती की बिकॉज इसको पता ही नहीं था। सो इवेंचुअली शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माई जस्ट स्किन ग्रू थिक, एंड जो है मैंने कहा ठीक है, करते रहो बुराइयां, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी एट द एंड ऑफ द डे। तो यस, नो प्रॉब्लम। इब्राहिम, आपके बारे में कोई हैव यू कम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग मीम अबाउट योरसेल्फ? मेरे तो क्योंकि मैं एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन भी हेड करता था, और आज अब दोबारा हुआ, उसमें हजारों स्टूडेंट हैं, तो वो तो उनको तो कोई मौका चाहिए होता है कि कोई जो है ना मीम बना दे। और एक दो ने कोई ऐसे पेजेस भी बनाए हुए थे, तो हर वक्त ऐसी डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, कभी क्रॉप कर दें तस्वीर, कभी म्यूजिक के साथ, तो ये तो चलता रहता है। मैं तो ज़रा ज़्यादा इसका शिकार रहता हूँ, लेकिन आई एंजॉय इट, और मैं कभी कभी रीशेयर भी कर देता हूँ अगर वो ज़्यादा फनी हो। तो ये है कि आपको गुड ह्यूमर भी होना चाहिए, कि आप एंजॉय भी करें अपने आप पे, आपको हंसना भी आना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि आदमी जो है बहुत पहले टेंशन से ही कर रहा है। अच्छा सवेरा, आपके YouTube चैनल पे इंडियंस बहुत फॉलो करते हैं आपको, व्हाट्स द रीजन? सबसे मेजर रीजन ये है कि इस वक्त अगर आप YouTube पे कहें तो सबसे ज्यादा है ही इंडियंस। अच्छा, 1 रुपए का 1 GB मिलता है वहाँ, तो ऑब्वियसली जिसके पास काम नहीं भी है उसके पास इंटरनेट जरूर है। बिल्कुल, सबसे पहली रीजन। मगर उसकी एक और मेजर रीजन ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि हमारी जो सोशल मीडिया की आवाम है उससे ज्यादा एजुकेटेड, लिटरेट वहाँ की आवाम होने लगी। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये कि वो बहुत तेजी से अडेप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, वहाँ मतलब हर चीज को, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी को भी। वहाँ पे पेटीएम वगैरह जो है ना, वो अब सब्जी वाले के पास भी है, यू डोंट नीड टू कैरी कैश, वो अपने मोबाइल से वो कर देंगे कि पेटीएम कर दो। सो तो वो इस वजह से शायद एक तो वो स्पोर्ट्स कंटेंट को देखते उस तरीके से हैं, एंड क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली देयर स्पोर्ट्स कंटेंट, एंड देन आई इवन कवर इंडियन टीम, आई फॉलो पाकिस्तान टीम एंड इंडियन टीम। तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, जो हम बोलेंगे वो समझ आएगी, सो मे बी दैट इज द मेजर रीजन दैट, एंड
honestly speaking, the kind of love that I've got from the Indian fans. दुबई में we have done our meetups. अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी World T20 के लिए. Imagine one of my fan, he planned a meetup for me, and almost 42 people were there in Australia, in Melbourne, and they arranged everything. बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने खुद देखा है कि like I went with my father to India, and वहाँ पे इंज़माम उल हक and my father were there, और भीड़ जमा हो गई थी, and people were crazy about them. They totally worship. इब्राहिम, पाकिस्तान में एजुकेशन भी एक बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है. लाइक एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. इसको आपको क्या लगता है कैसे डील करना चाहिए हमें? देखिए, ऑब्वियसली स्टार्ट करेगा विद गुड पॉलिसी कि अब गवर्नमेंट जो है इसको लीड करे. गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल लेवल पे उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि एजुकेशन सेक्टर फ्लरिश करे. और इसमें ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है कि टीचर्स जो हैं वो वेल पेड हो, वो वेल ट्रेंड हो. और जो तीसरी और सबसे बड़ी बात है जो यूथ के लिए, वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीखने के लिए पढ़ें. वो ये ना कहें कि मैंने डिग्री लेनी है, या मैंने इंटर पास करना है, या मैंने ए लेवल करना है, मैंने ए लेने हैं. वो कहें मुझे इसमें से कुछ मैं सीखूं, मेरी पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में कोई बेहतरी आए, इम्प्रूवमेंट आए. तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंटेंट है वो क्या है. इब्राहिम, हमारी आपका यूथ के साथ बहुत आपका मतलब यू इंटरेक्ट विद देम अ लॉट, और हमारी यूथ बहुत मायूस है आजकल की करंट सिचुएशन के हिसाब से. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, एक तो ये इस बात पे हमारा यकीन होना चाहिए जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया की अजीम तरीन कौम है. और ये कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें रोक सके प्रोग्रेस करने से, ग्रो करने से, इकोनॉमिकली सॉवेंट बनने से. और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मैं यूथ को भी देता हूँ कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं. लेकिन ये कि अगर आप माइंस का सेक्टर देखें, मेरे पास माइंस का पोर्टफोलियो था एक जगह वर्चा के अंदर, जो कि जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना. सिर्फ उधर हमारे पास $2 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं. हम कॉपर में जो है इंशाल्लाह 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं. एग्रीकल्चर में हमारे पास 4 मिलियन एकर्स हैं जो कि अब अगले 3-4 साल में आएंगे हमारी इकॉनमी में. आप बाकी सेक्टर्स में देखें, सर्विस के अंदर, आईटी के अंदर बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कोप है. तो हमारे पास यूथ भी है, हमारे पास वो टैलेंट भी है, हमारे पास मुल्क में वो एसेट्स भी हैं. लेकिन ये कि इनको हमने अनफोल्ड करना है, अनलीश करना है, इनको हमने काम पे जो है वो लगाना है, यूथ को भी और इन एसेट्स को भी. तो इब्राहिम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्किल लर्निंग पे क्यों नहीं काम करते स्टूडेंट्स की? देखिए, आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, असेसमेंट से गुजारा जाता है. फ़र्ज़ करें आपको अगर ग्रुप वर्क के लिए कोई काम दिया जाता है तो इससे आप टीम बिल्डिंग सीखते हैं, आप टीम वर्क सीखते हैं कि 3-4 लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है. आपको कुछ रीड करने के लिए दिया जाता है तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सीखते हैं कि अगर मैंने कोई बात की तो आपको क्या समझ आई, आपने उसको ग्रैस्प किया नहीं किया. तो आप अगर लेट्स से अरिथमेटिक मैथ सीखते हैं तो आप लॉजिक सीखते हैं कि आपने कोई चीज़ आपको बताई गई है तो आपने उसको एनालाइज किस तरह करना है. तो ऑब्वियसली आप जो है एक अपनी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करते हैं, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है वो आप वर्क प्लेस पे सीखते हैं. अब एक कोई आदमी हो, वो कहे कि मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे पास 10 साल जितना एक आदमी का जो एक्सपीरियंस है उतनी मेरे पास हुनर है, तो ये तो इम्पॉसिबल है. तो ऑब्वियसली ये कि एक्सपीरियंस का तो कोई नेम बदल नहीं है. आप जब जाएंगे चक्की में पिसेंगे, आप मेहनत करेंगे, यू विल ग्राइंड, तो फिर ही आप जाके अपने आप को मजीद जो है ना पॉलिश कर सकेंगे और डेवलप करेंगे. कोई एक मिडिल वे नहीं हो सकता कि एक हम जैसे इंटर्नशिप्स को बड़ा फोकस करते हैं और इंटर्नशिप्स होती भी हैं, बट समर प्रोग्राम होता है जिसमें इंटर्नशिप्स होती हैं कि प्रैक्टिकली पैरेलली अप्लाई करते रहें साथ साथ. जिस तरह आपने कहा कि स्टूडेंट्स काम करते हैं दुनिया भर में, शायद वो अपनी फील्ड में काम नहीं करते बट वो एक्सपोजर दुनिया भर की, वो कहते हैं ना रियल टाइम चालाकियां पता कर रहे होते हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है. ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हमारा बच्चा निकलता है एजुकेशन से बाहर दुनिया भर में एक बड़ा मैच्योर इंसान निकलता है बाहर. देखिए, एक तो ये कि जब आप नॉलेज ऑब्वियसली हासिल करते हैं तो होता क्या है कि आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ता है. जितना आपका इल्म होता है उतनी आप में गहराई आती है, उतना आप में विजडम आता है. तो आप उतने अवेयर होते हैं कि दुनिया जो है ना किस तरह चलती है, सूरज सुबह निकलता है, ये केमिकल्स क्या है, पानी क्या है, ग्रेविटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको ऑब्वियसली एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए टू डील विद लाइफ चैलेंजेस और इस दुनिया में रहने के लिए. ऑब्वियसली अब आपको एक स्किल्स भी चाहिए जो कि आपने अपने लेट से कोई ज़रिए आमदन बनाना है तो उसके लिए आपको वो ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी जो है वो एक हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन होता है, वो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है.
वो आपका इंटेलेक्ट लेवल डेवलप करता है, वो आपको डेवलप करता है कि आप पूरी ज़िंदगी सीख सकें। आपको आगे भी पूरी ज़िंदगी ऐसा ना हो कि 20 साल 30 साल यूनिवर्सिटी में ही आप गुजारें, आप कोई किताब पकड़ें तो आप उससे सीख लें, आप कोई वीडियो देखें आप उससे सीख लें, आप किसी जगह जाएं उधर आपको टाइम गुजारें तो आप वो प्रोसेस या वो सिस्टम सीख लें। तो इसके लिए आपको जो फाउंडेशन चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड करती है। एनीवे सवेरा, आप अपने शोज में क्रिकेटर्स को बहुत क्रिटिसाइज भी करती हैं तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कॉल करके कुछ नाराजगी जाहिर की हो या कोई माइंड कर गया हो कभी? कभी कभार हो जाता है ऐसा, कर जाते हैं माइंड, मगर ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है एंड स्पेशली दिस लॉट जो अभी है वो आई फील वेरी ओल्ड सेइंग दैट, बट ये बड़े हुए हैं मेरे सामने। मतलब बाबर आजम को मैं अंडर 19 से देख रही हूँ, आई सीन हिम प्लेइंग इन पाकिस्तान अंडर 19। तो वो अब जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि उनको अंदाजा हो गया कि ये मेरी जिनसे बहुत अच्छी बातचीत भी है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आई स्पीक आउट फॉर दैट एज वेल विदाउट इवन थिंकिंग कि वो कहेगा यार हम दोस्ती का ख्याल रख लेते। सो नहीं, मैं अपने प्रोफेशन से बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो दोस्ती वोस्ती बात की बात है, बट ये कि नहीं जो गलत है वो गलत है। तो करते हैं शिकवे शिकायत करते हैं, बहुत दफा गुस्से में मुझे ब्लॉक कर दिया बात करते करते, अच्छा ठीक है फिर बोलती रहे आपने जो बोलना है ठक कर, कोई बात नहीं, होता है, दुनिया चलता है। एंड हु इज योर फेवरेट प्लेयर इन करंट टाइम्स और इन ओल्ड टाइम्स? दोनों बता दें। देखिए ऑल ओवर अगर कहे ना तो विव रिचर्ड्स, मैं बड़ी हुई हूँ विव रिचर्ड्स। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में हुआ ही ऐसे कि मेरे अब्बू बहुत बड़े फैन थे विव रिचर्ड्स के, सो मैं बचपन से विव रिचर्ड्स को देखती हुई बड़ी हुई हूँ बिकॉज वो देखते थे वो। एंड इन द करंट टाइम फ्रेम देखिए इस वक्त तो आई वुड से अगर क्रिकेट का कोई एक ग्रेट है दैट इज विराट कोहली एट एनी टाइम। एंड मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में, लोग बड़ा कहते हैं कि अच्छा जी। And then obviously Babar is trying his level best. He's right now one of the best Pakistani player that we can get. Okay. And I hope he flourishes more. I'm a fan of both of their Viv Richards' ex-wife and Virat's current wife. I do not care about the cricketers. Stop looking at others' wives. इब्राहिम, आपको स्पोर्ट्स का शौक है? जी Like, are you into cricket? जी क्रिकेट फुटबॉल में तो पहले तो हर दुनिया की स्पोर्ट्स जो भी है वो मैराथन भी मैं भागा, जिम्नास्टिक्स भी मैंने की, हॉर्स राइड, जो भी दुनिया की स्पोर्ट है, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये के पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, yeah that's the kind of sports I like, सर्फिंग, adrenaline rush exactly. So दुनिया की कोई भी स्पोर्ट है मैंने की है। तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर है? फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में हम ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक वाइड वैरायटी है। अभी करंट टीम में देखें तो शाहीन इज वेरी गुड एज अ बॉलर, और बाबर जो है ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन अभी करंट टीम में बहुत अच्छे हैं। ऑल टाइम ये है कि अगर देखें तो जिस तरह शोएब अख्तर बिकॉज ऑफ हिज स्पेस एंड शाहिद भाई बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग, तो ये कि एक्स क्रिकेटर्स में ये अच्छे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली शोएब अख्तर की एक 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें बोल्ड किए हुए शोएब अख्तर, वो लूप पे चलती रहती है एंड आई कैन वॉच इट द होल डे। Okay guys, we need to take a break and we'll be back after the break. You guys keep watching Summer Lounge. Welcome back after the break guys. Let's just continue our conversation with Ibrahim Hassan Murad and Savera Pasha. अच्छा सवेरा, कैप्टनसी में लाला की फर्स्ट चॉइस शायद आज भी शाहीन के मुकाबले रिजवान है, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल से जो इंसान एक चीज से गुजरा हुआ होता है ना उसको पता होता है कि कितना मुश्किल है। तो अगर मैं किसी एक चीज से गुजरी हुई हूँ तो शायद मैं चाहूंगी कि मेरी औलाद उस चीज से ना गुजरे। उसी तरह मे बी एक दामाद जो है वो औलाद जैसा ही होता है। तो मे बी ही हैज सीन हाउ हॉरिबल इट इज, बिकॉज बहुत मुश्किल है एक ऐसे मुल्क में उस टीम का कप्तान बनना जो कि एक वन स्पोर्ट नेशन है, जिसमें एक हर किसी का एक रक्षा चलाने वाले से लेके एक BMW चलाने वाले तक का ओपिनियन है क्रिकेट के बारे में, और हर कोई बताता है कि नहीं जी शाहीन को फील्ड वहां खड़ी करनी चाहिए थी, और उधर चलता हुआ आप सब्जी भी खरीद रहे होंगे तो कहेंगे आप बताती क्यों नहीं है उनको कि उनको फील्ड ऐसी खड़ी करनी चाहिए थी। तो उस मुल्क में बहुत मुश्किल है कैप्टनसी, तो मे बी इस वजह से ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिम। बिल्कुल। शाहीन पर क्रिटिसाइज करने से लाला नाराज होते हैं? कभी भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी नहीं। मतलब ये कि शाहीन नाराज हो जाता है कि आप इतने मेरे सवाल क्यों पूछती है लाला से, मगर ये कि लाला कभी भी नहीं, ही हैज बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभार तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, या ही इज, और कभी कभार होता है ना बहुत नाजुक रिश्ता होता है एक ससुर का और एक दामाद का,
कि वो कभी नाराज हो जाए कि मेरे क्यों कह दिया लाला ने ये फलाना, बट मे बी वो भी जानता है कि लाला जो है वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ही सेज एवरीथिंग दैट ही थिंक्स कि नहीं जी शाहीन ने फलाना गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो यस कभी भी नहीं। इब्राहिम, कमिंग टू यू, आपके पास 3-4 मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियोज थे, आपने इलेक्शन लड़ने का क्यों नहीं सोचा? एक तो ये कि ऑब्वियसली आप जो राइट आफ्टर होता है उस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आप खुद जिस सेटअप में वो वाले इलेक्शन में नहीं आ सकते। ये कि अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये कि यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। फिलहाल ये कि ये देखना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हैं। आप मीडिया के अंदर हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन के सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप टैक्स देते हैं, आप उस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक अभी एजुकेशन जो है मेरे पास, अभी मैं देखता हूँ कि तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, तो दिस इज़ अ ह्यूज ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें भी पब्लिक सर्विस चल रही है, और हम ऑब्वियसली जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तकरीबन हम 10 बिलियन रुपीज़ की स्कॉलरशिप दे चुके हैं ILM फंड से, उसको हम चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो सोशल वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। आपने मिनिस्ट्री में इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इनोवेशन की भी बात करी थी, उस प्रोजेक्ट का क्या बना? एक तो ये था कि हमने यूथ के लिए 20,000 बाइक्स का प्रोग्राम जो कि अब लॉन्च हुआ है, ये था कि इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएं। इसमें साल की तकरीबन 1 से 1.5 लाख की फ्यूल की बचत है। उसके अलावा इन्वायरमेंट बहुत हमारी ख़राब हो गई है, स्मॉग एक सीज़न बन गया है, तो हमने कहा कि पोल्यूशन को कम किया जाए। और यूथ को जो है इधर हाई इंटरेस्ट पे बाइक्स मिलती हैं, तो हमने 0 इंटरेस्ट पे बाइक्स जो है वो प्रोवाइड की। फिर ये कि ऑब्वियसली जब फ्यूल प्राइसेस कम हुई थी, तो हमने पूरे पंजाब में फ्यूल प्राइसेस जो थी ट्रांसपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं टिकट्स के अंदर, वो कम कराई। टिकट्स की जो प्राइसेस थी उसमें बहुत अच्छी एक डिक्रीज़ आई। तो ये कि इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। हमारे जब मेट्रो बस थी तो उसमें रिकॉर्ड ट्रैवलिंग हमारी हुई, 75% से 85% पे उसकी ऑक्यूपेंसी चली गई। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जो कि हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सक्सेसफुल। सही। और डिजिटलाइजेशन के हवाले से आपने काफ़ी काम किया है, ये करप्शन फ्री कल्चर डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं जो पहली चीज़ देखी ना, वो ये कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए, रेगुलरिटीज़ थी, करप्शन थी। अब आप देखें कि पंजाब में सालाना 17,50,000 बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, और एक बर्थ सर्टिफिकेट को लेने के लिए 2 से 8,000 रुपये जो है ना आम आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। तो तकरीबन 3-4 अरब मैंने देखा कि आवाम तो अपने औलाद की पैदाइश पे दे रही है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये कि डिजिटलाइजेशन आप करें, डिजिटाइजेशन करें। और आप, अब हमने जो किया नादरा के साथ, कि आप घर बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और घर बैठे बैठे आपको अपना सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है, अगर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसमें आप देखें एक इनिशिएटिव से बिलियंस की जो सेविंग हुई आम आदमी की। हाउ डू यू फाइंड मरियम नवाज इज द फर्स्ट फीमेल CM पंजाब? Like, what do you have to say about that? मैं देखता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जो है एक इस मामले में खुशकिस्मत है कि हमें विमेन लीडरशिप मिली है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो देखें, उनसे पहले फातिमा जिन्ना देखें, उनकी एक स्ट्रगल थी। और ये कि हमें एक ऐसी लीडरशिप डिफरेंट एराज में मिली है, जो कि मतलब ये कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि लोग जो है बेसिक्स समझते हैं कि फीमेल जेंडर को नहीं पता। लेकिन ये आप देखें कि दूसरे एंड पे हमारी जो सबसे बड़ा सूबा है उसको एक फ़ीमेल हेड कर रही हैं। उसके साथ साथ ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विमेन जो है वो जज हैं। फिर ये कि बेनज़ीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर एट 35, अनइमेजिनेबल है। तो ये कि इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव है कि औरतों को जो है ना वो एक मोटिवेशन मिलती है कि ये मर्द समझते हैं हम घर नहीं चला सकते, तो पूरा वो सूबा चला रही है 14 करोड़ लोगों का। तो ये कि उनको एक इसमें मोटिवेशन मिलती है कि ये अगर कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड आई हैव द बेस्ट विशेस कि वो डिलीवर करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि किसी भी फ़र्द से हमारी कोई वो लिंक नहीं होनी चाहिए, एफिलिएशन। अवाम जो है, पाकिस्तान मुल्क जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुल्क के लिए वो अच्छा करेंगी तो वो अच्छी हैं, और अगर मुल्क के लिए वो अच्छा नहीं कर सकेंगी तो ये देन टाइम विल टेल, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जब दोनों जेंडर की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, एक तो यू गेट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ एक और चीज ये होती है कि देखिए 2 जेंडर्स हैं और अच्छी खासी जो हमारी पॉपुलेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन हाफ जो है वो वुमेन है। मे बी 52-48 का रेशो है जो कि मेन वुमेन का रेशो है हमारा। तो जब तक
एक गाड़ी के दोनों पहिए नहीं चलते तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। एक पहिए पे कभी भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। यू नीड बोथ द व्हील्स वर्किंग टुगेदर। सो यस, बहुत अच्छी बात है। और जो है ऑल माई बेस्ट विशेस टू हर। आई होप कि बहुत सारी चीजें जो कि सही होने वाली हैं वो उनके टेन्योर में सही हो जाए। ओके गाइस, काफी हैवी टॉक्स हो रही हैं, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट लाइटर साइड्स ऑफ द थिंग्स। वेलकम बैक टू समा लाउंज गाइस। लेट्स टॉक अबाउट द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स नाउ। होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आजकल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? होम स्कूलिंग देखें आप, जो वैसी आपकी भी या मेरी भी जितनी स्कूलिंग है स्कूल में तो है, लेकिन जो घर से आपको तरबियत मिलती है, जो पेरेंट्स आपको अपना नॉलेज, फैमिली वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। एनीवे इब्राहिम, वॉलंटियर फोर्स का पर्पस और फ्यूचर/ड्यूटीज क्या है? देखिए, ये आइडिया इस तरह है कि मैंने देखा कि यूथ है वो आज जो है कनेक्टेड नहीं है हमारे से। तो मैंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की, हमने कुछ उसकी वीडियोस वगैरह बनाई और 2 से 3 हफ्ते में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो गए पूरे पंजाब से। तो ये कि फिर मैंने कहा कि ये हमारे साथ अटैच हो गए, अब इनसे हम इनपुट लें, इनके क्या इश्यूज़ हैं, और ये कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, पब्लिक पॉलिसी है, वो यूथ की नीड्स के साथ अलाइन होती है कि नहीं होती। तो ये कि इनको हमने अब डिफरेंट टास्क देते हैं, इस तरह क्लीननेस कैंपेन है वो करते हैं। फिर ये कि रमज़ान के अंदर केयरिंग फॉर द पुअर। बेसिकली आइडिया ये है कि किस तरह हम एक बेहतर जो है सोसाइटी, एक बेहतर इन द फर्स्ट इंस्टेंस सूबा या गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और यूथ और गवर्नमेंट को किस तरह लाइन कर सकते हैं। तो ये एक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि 1 लाख हम वॉलंटियर बनाएंगे। सही, तो जी चल रही है ये। वेल, बेस्ट ऑफ लक टू यू। एनीवे, ऑन अ लाइटर साइड, सवेरा यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू लाहौर। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हैं। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? अभी तो आई एम जस्ट सेटलिंग इन, क्योंकि जो है अभी जो 15 दिन भी पूरे नहीं हुए। अच्छा। सो यस, नॉट इवन हाफ अ मंथ। ओके। सो इस वक्त तो ऑल आई नो इज कौन से कार्टन में कौन सी चीज रखी है, जूते कौन से कार्टन में पड़े हुए हैं। तो अभी तक तो इट्स लाइक आई एम इन द अनबॉक्सिंग फेज। सो अदर देन दैट, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट लाहौर ट्रैवल करती रही हूँ, 2-2, 3-3 महीने यहाँ रही हूँ बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट वाज दोज वर हैपनिंग। तो इंटरेक्शन मेरा हमेशा बहुत अच्छा रहा। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया टू एक्चुअली शिफ्ट हियर? I believe हरकत में बरकत है, and yes, why not try another city? I've been born and brought up in Karachi, but nothing to take away from Karachi, but I wanted to explore another city. So do you like Karachi more or Lahore? It's very early to say. But you've been here a lot, you've stayed here a lot even before. नहीं, बहुत जल्दी है। हर शहर का एक अपना डायनामिक्स है। कराची इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी वेरी फास्ट। लग रहा है फिलहाल इनको पसंद नहीं आया। You're just running right off. फिलहाल टाइम, पता है, ओपिनियन बनाने का भी टाइम बहुत छोटा है। सो मैं एकदम से मैं कह दूं हाँ ये है तो ये गलत होगा ना, तो आई डोंट वांट टू से। You seem like a very city girl as well. Are you? I am. I like fast paced life. इब्राहिम, बहुत से लोग कहते हैं कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की वजह से हुकूमत में आते हैं, लेकिन आप अपनी टी और कॉफी के भी एक्सपेंसेस खुद बेयर करते हैं। क्या आपको प्रोटोकॉल्स पसंद नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो टैक्स मनी होता है कि ट्रस्ट ऑफ द पीपल है। कि आपने अपनी मेहनत की, 1 महीने आपने कमाया, आपकी जो भी इनकम थी उसका एक हिस्सा आपने गवर्नमेंट को दिया, और ये कि वो अगर पैसे जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो उड़ा रहे हो अपनी याशियों पे, अपनी घूमने फिरने पे, इंटरटेनमेंट पे, या दूसरों पे खर्च कर रहे हो जो अपने जान पहचान वाले हैं, तो ये कि ये अनजस्ट है और ये इलीगल है। तो ये कि मैंने ये पहली दिन सोचा कि ऑब्वियसली मेरे पास ऐसी है रिसोर्सेज कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, और ये कि मेरा अपना कोई बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ ओनरशिप है, ये आप में होनी चाहिए, हर किसी में होनी चाहिए। और ये कि ऐसे भी लोग हैं जो कि 10 साल 8 साल गवर्नमेंट में रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया, सैलरी नहीं ली, कोई पर्क्स प्रिविलेज नहीं लिए। तो ये कि मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है कि हम जो है इस पे एहसास करें कि कोई भी गवर्नमेंट का जो टैक्स मनी है ये आवाम पे खर्च होना चाहिए, ये गरीब आदमी का पहला हक है उस पर, तो हमारा नहीं है। तो ये एक आइडिया है जो कि इसमें बिलीव करता हूँ। सवेरा, आप लाला के साथ काफ़ी अरसे से शोज कर रही हैं, उनकी कोई 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ बताएं। 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ।
अच्छा जी, 3 खूबियां। एक तो पहला वही दैट ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yes. इसको मैं खूबी भी कहूंगी और खामी बस इसको खामी भी कहूंगी। I agree with yes. you. बिकॉज जो है कभी कभार वो बड़ा उसका सेटबैक बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकेंडली he is very supportive because सिर्फ मैं काम नहीं कर रही हूँ, he is my boss as well. He is the sports director of Sama. Yes. तो ही इज लाइक कि अगर एक किसी को ही डज नॉट माइक्रो मैनेज, एक काम दे दिया किसी को, so वो कहते हैं अच्छा ये कर लेगी, हो जाएगा, फलाने को दे दिया वो कर लेगा, हो जाएगा। एंड thirdly, अच्छा साथ साथ मैं वो बताती हूँ, ही इज वेरी occupied, very occupied। ये बुरी वाली साइड पे मैं वो कर रही हूँ, not the quality। वो इतना occupied होते हैं that he forgets things। उनको रिमाइंडर देते रहना पड़ता है, अगर आप रिमाइंडर देने में आप भूल गए तो वो भूल गए। सही। So yes, वो that's very difficult to match the pace। Okay. बाकी 3 छोड़ दें, 2 सही हैं। सही। अच्छा इब्राहिम, you come from this background and all of that, and you yet chose to like have an arranged marriage. कभी आपको प्यार नहीं हुआ? प्यार तो आदमी को होता रहता है। अच्छा होता रहता है डिफरेंट चीजों से। कभी कोई आपको चीजों से नहीं, कभी आपको हो सकता है कोई गाड़ी पसंद आ जाए, वो वाला शादी नहीं हो सकती ना गाड़ी से। You cannot marry a car. ये कि अच्छी चीजें तो आपको लगती रहती हैं, लेकिन ये कि आपका ये कि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिलहाल इत्तेफाक नहीं हुआ कि चले अब दोबारा पूछें। Like you chose to have an arranged marriage, so you never fell in love. नहीं, ये कि मैं तो समझता हूँ कि अरेंज मैरिज भी ऑप्शन है, जो कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है, और अगर आप अपनी चॉइस से करें तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ये अलग बात है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो अरेंज मैरिज के फेवर पे हैं। तो ये कि मैंने बट लाइक कॉलेज वो भी स्टैटिस्टिकली देख के किया है। ओके, लेकिन स्कूल कॉलेज के ज़माने में यू नेवर फेल इन लव, या आपका कोई प्यार अधूरा रह गया हो? नहीं, है कि मुझे स्पोर्ट से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगाव था, गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद थी, ट्रैवलिंग मुझे अच्छी लगती थी, खाना लड़की लड़की I think no the answer is clear, no। you have one true love which is your wife। हाँ जी, okay, तो देखेंगे शो। so where you on the other hand, आपने लड़का पसंद किया और आप सीधा you went to your father। exactly, you were confident that he'll no I went to my father। बहुत जरूरी पता है, आप पेरेंटिंग के साथ बात कर रहे थे, बेटियों से बाप का क्लोज होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी जिंदगी की मुझे ये लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह मेरी परवरिश की, वो सबसे बड़ी एक चीज ये थी कि माय फादर इज वेरी क्लोज टू मी। उन्होंने ये कहा था, बेटा मुझे राजदार बनाओगी ना, मैं मदद करूंगा, बट मुझे अगर किसी XYZ किसी से पता चला, मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। सो द डे आई फेल्ट कि हाँ जी दिस पर्सन सीम्स सेंसिबल टू बी माय हस्बैंड, I just went to him and I told him कि पापा ऐसे ऐसे एक लड़का है, और कोई लैला मजनू वाली कहानी नहीं है, just meet him, if you like him it's okay, वरना हम कोई और ढूंढ लेंगे, literally इस तरह ना। So that was the reason। तो मतलब मैंने अपनी अम्मी से पहले अपने अब्बू से ये बात शेयर की थी। Okay, so you approached it practically as well, exactly, like Ibrahim। yeah, I've always, मतलब मैंने लव मैरिज को अरेंज कर दिया, उन्होंने अरेंज को लव कर दिया। मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं कि अगर आपको कोई आदमी मिलता है जो आप समझते हैं कि दे कैन बी वेरी गुड लाइफ पार्टनर, तो अपने पेरेंट्स बाकी आप लोगों से मशवरा करें, और ये कि इमोशनली डिसीजन ना करें, रैशनली डिसीजन करें। होता है कि जब आप किसी के लिए लाइकिंग डेवलप करते हैं तो आप इमोशनली सोचते हैं और उस फेज में होते हैं, फिर लोग रिग्रेट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और लोगों को चाहिए, यूथ को, कि इसको रैशनली, लॉजिकली और बड़ों की मुशावरत और उनकी मंशा से इसको करें। So both of you, I see both of you and you guys look very fresh, fit। आप लोग अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं? Do you do anything to maintain it? बच्चों के पीछे भाग भाग के। अच्छा। और आजकल तो क्योंकि अभी तक मेड नहीं मिली है, तो खुद घर की सफाई कर करके। अच्छा, सही। और आप? पहले तो मैं काफी एक्सरसाइज करता था, जिम वगैरह, ये कि पिछले 1-1.5 साल से मुझे इतना टाइम नहीं मिला। अच्छा। तो डाइट कंट्रोल जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, और पिछले कुछ अरसे से लंच मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, सही। तो ये कैसा है कि अगर आप मिड एज में आ जाएं और लंच स्किप कर दें तो आप फिट रहेंगे। बट आप फूडी हैं? मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, और ये कि पाकिस्तानी कुजीन ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट है, निहारी, पाए, ये वो सारे आपके जितने डर्टी कुजीन है। Exactly। आप कैसे उन चीजों से परहेज ये सारे जो कराने में रोल प्ले करते हैं मेजर, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप दोनों का फेवरेट गाना क्या है? फेवरेट गाना क्या है? If you had to pick one।
one song is it's very difficult. Time बदलता जाता है, age बदलती जाती है, गाना आजकल ना बहुत मजे की बात ये है कि गाने से ज़्यादा there's this Sufi कलाम, there's this if you remember कुछ अरसे पहले जो है वो अहमद जहांज़ेब एंड शफ़क़त अमानत अली they played और वो एक जो कोक स्टूडियो होता है उसका वो था एंड इट मतलब वो मेरे पास लूप पे लगा रहा था. It was amazing कि वो उसकी लिरिक्स एंड उसकी सिंगिंग तो वो आजकल I would say कि मौला अली मौला yes and what about you अल्लाहू उसका नाम है okay. मैं आजकल एक कवाली सुन रहा था फारसी की तनम फरसूदा तो ये बड़ी अच्छी मुझे थोड़ी समझ नहीं आती लेकिन एक आइडिया हो ही जाता है क्योंकि इट इज अ बिट सिमिलर टू उर्दू लेकिन ये कि वो बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी और दिल को जो है वो लग रही थी. सूफी कवाली थी. Oh, so many. Honestly, so many. और पता है मैं पाकिस्तानी म्यूजिक से बहुत लेट जाके इंट्रोड्यूस हूँ. I've grown up on Bollywood, honestly, and then मैं बहुत अभी recently जाके. We all have grown up on Bollywood. देखिए, we cannot deny the fact. वो VHS रेंट पे लेकर आना and watching those movies and उसके बाद cinemas में लगना movies and then फिर ban हो जाना. तो yes, we all have grown up during that time frame. और जो है, but yes. But कौन सा favorite गाना? I love a lot of like slow आप गा के सुनाएंगे songs. कि कौन सा favorite? अभी मैं वो उसका सुन रहा हूँ कोक स्टूडियो का एक गाना है उड्डी जा तो उसकी एक लाइन गा देता हूँ. Yes, please. उड्डी जा 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 जा उड्डी जा इल्म किताबी मगरों लाके हक दिया मुंदरा कन्नी पाके उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा. Ooh, wonderful, wonderful. I love this song, yeah. Anyways, that was it, guys. बहुत मैंने enjoy किया आप लोगों से बात करके. It was really nice dwelling into your personal lives, your personal क्या कहते हैं preferences as well. So बहुत educate भी किया आप लोगों ने मुझे. So I hope to talk to you again soon. And that was it, guys. You guys stay tuned.